Hello and welcome to the Employment Academy. So as we have already started the current shooters for the month of May, so here I am with the next class. Okay, so let's begin. First is, what is the theme of the first quiz under government Sabka Vikas Maha quiz? So this is India's the biggest quiz that has been launched by Prime Minister Modi. Okay, under the scheme of Garib Kalyan Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana. Okay. So the correct option will be option number A. Okay, this has been organized by Ministry of Electronics and Information Technology. Okay, do remember this also, Ministry of Electronics and Information Technology. Okay, who is the current यूनियन मिनिस्टर? उनका नाम है अश्विनी वैभव। ओके, वैष्णव। ओके, वी होगा डब्ल्यू का आप लोग चेक कर लेना एक बार, वैष्णव भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, बाकी ये स्वनिधि स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स, यू ऑल माइट बी अवेयर ऑफ। नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस स्कीम, दैट इज़ वही ग्रेच्युटी अमाउंट हर किसी को मिलता है आफ्टर द एज ऑफ 60। तो आजकल जो पेंशन वाला सिस्टम है दैट इज़ बिन इरेडिकेटेड। ओके, दैट इज़ बिन स्टॉप्ड। सो दिस इज़ व्हाट द स्कीम इज ऑल अबाउट। एंड सुकन्या समृद्धि स्कीम योजना जो है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट टू रिवाइज। Okay, next is, which the Indian state announced to celebrate the birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar on April 14 as Equality Day. Okay, so the correct answer will be Tamil Nadu. Okay, Tamil Nadu has मतलब April 14 को Equality Day नाम से हम लोग आज इसको सेलिब्रेट करेंगे on the birth anniversary of B.R. Ambedkar. Okay, so this is an important question, so do remember this. Okay. Next is, what is the name of the website launched for services related to broadcast in India? So the correct answer will be Broadcast Seva Portal. So to get the license or to get some approvals काफ़ी टाइम लग जाता था. So जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, मिस्टर अनुराग ठाकुर साहब, उन्होंने इसको स्पीड अप करने के लिए, to ensure speed filling and processing of applications for various broadcast licenses, permissions, etc. So this portal has been started. This portal has been launched. Okay, Ministry of Information and Broadcasting. Okay, ब्रॉडकास्टिंग कौन है? अनुराग ठाकुर। ओके, सो ये आप लोग को याद रखना है। ओके, चलो नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फास्टर? सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है हमारा चीफ जस्टिस? NV रामानन। ओके, NV Ramanan. He has inaugurated, he has launched this digital platform, fast and secure transmission of electronic records. So this is correct answer, Supreme Court of India. मतलब एक सिक्योर लाइन इन्होंने निकाला, लॉन्च किया है, सो दैट टू मेक द फाइलिंग वर्क अ बिट फास्टर. ओके, सो डू रिमेंबर दिस. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CV रामन्ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये लॉन्च किया है. ओके, नेक्स्ट इज, कैबिनेट हैज़ एक्सटेंडेड द अटल इनोवेशन मिशन फॉर ए टाइम पीरियड ऑफ मार्च 2023 तक. ये एक्सटेंड कर दिया गया है. सो दिस अटल इनोवेशन मिशन वर्क्स ऑन इट्स इंटेंट टू टारगेट क्रिएटिंग एन innovation culture and entrepreneur system in the country. Okay, innovation culture and entrepreneur ecosystem in the country. So this has been extended till 2023.
Next is according to World Bank report, extreme poverty in India is declined by dash in 2019 as compared to 2011. So the correct answer will be 12.3%. Okay, 12.3%. अगर पॉवर्टी लाइन की मैं बात करूँ, इन रूरल रुपीज़ 1059 पर मंथ इज़ द पॉवर्टी लाइन. मतलब इससे नीचे जो भी इनकम करता है ही लिव्स अंडर द पॉवर्टी लाइन, एंड इससे ऊपर जो भी इनकम करता है ही डजंट लिव. ओके, दिस इज फॉर रूरल, दिस फॉर रूरल एरिया. ओके, एंड रुपीज़ 1286 पर मंथ इज फॉर अर्बन एरियाज, इज फॉर अर्बन एरियाज. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. Which scheme has been selected for Prime Minister's Award for Excellence in Public Administration in 2020 under Innovation General Central category? Okay, so the answer is Udan scheme. Udan scheme has been launched by Ministry of Civil Aviation. Okay, Civil Aviation. So इस उड़ान स्कीम का क्या वो है, मतलब क्या है? उड़ान स्कीम के अंदर टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ को जोड़ेंगे विथ टायर 1 वाया एयर. ओके, वाया एयर इसको जोड़ा जाएगा. ओके, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, इन्होंने ये लॉन्च किया था उड़ान स्कीम. ओके, हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 2020. ओके, दिस मार्क्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट, Alexander Vucic has been reappointed as the Prime Minister of which country for the second term? So the correct answer will be option number C, Serbia. Which country has become 30th country to join the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, CDRI? The correct answer is Madagascar. Okay, so what is this Coalition for Disaster Resilient Infrastructure? Okay, so the basic aim is to promote disaster resilient infrastructure. आजकल क्या करते हैं हम लोग कि कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पर अर्थक्वेक या कोई सुनामी आ गया, तो वहाँ वो आने के बाद, डिस्ट्रॉय होने के बाद, नुकसान होने के बाद वी गिव रिलीफ, गवर्नमेंट गिव रिलीफ, और द सिनेमा आर्टिस्ट, सेलिब्रिटीज़ वो पैसे देते, डोनेट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जाता है कि इसको रोकने के लिए क्यों ना हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे बनाएं ताकि ये इतने हमें हो ही ना, इतने नुकसान हमें उठाना ही ना पड़े. ठीक है, स्टडीज़, एज पर स्टडीज़ क्या बोला गया है कि एक चीज़ को तोड़ के दोबारा बनाने में ना ₹7 लगता है, ₹7 लगते हैं. एंड उसी चीज़ को अगर हम डिज़ास्टर रेजिलेंट बनाएं, उसको हम ₹1 में बना सकते हैं. ओके, ₹1 में बना सकते हैं. सो इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो. आप कोई भी एक चीज़ ले लो, किसी भी एक घर को ले लो, उसको आपने एज अ डिज़ास्टर रेजिलेंट बनाया, भूकंप आएगा, सुनामी आएगा, कुछ नहीं होगा, इट इज़ डिज़ास्टर रेजिलेंट. ठीक है, अब मान लो कि वो नॉर्मल घर बना दिया आपने, ठीक है, नॉर्मल बिल्डिंग बना दिया, सुनामी आया, भूकंप आया, वो तो टूट गया, फिर नया से बनाओ, अगेन स्टार्ट करो जीरो से, बट जो आपने बनाया वो तो सारा वेस्ट चला गया. ठीक है, सो इसके अंदर ये वाली चीज़ डिस्कस की जाती है. ओके, हाउ टू बिकम और हाउ टू प्रोमोट डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, सो डू रिमेंबर दिस. एंड Madagascar is the 30th country to join. India is already a member of this organization. Okay. Next is United Nations Human Rights Council has appointed whom as the world's first independent expert for human rights and climate change. So the correct answer will be Ian Fry. ओके, सो आप लोग मेरे को एक बताओ, ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिस इज इन जेनीवा. जेनीवा कहाँ? स्विट्ज़रलैंड. ओके, जेनीवा स्विट्ज़रलैंड. सो ये आप लोग को याद रखना है. हु हैज़
surpassed Warren Buffett to become the fifth richest person in the world according to the Forbes real-time billionaires list. The correct answer is Gautam Adani. Which country will host the 21st World Congress of Accountants 2022? करेक्ट, इंडिया होगा इसका आंसर सी, मुंबई में होगा ये. मुंबई विल होस्ट द 21st वर्ल्ड कांग्रेस अकाउंटेंट, ओके, 2022. Russia has withdrawn from which among the following UN bodies? So United Nations World Tourism Organization, okay, has suspended Russia's membership over its invasion of Ukraine. ठीक है, so the correct answer will be UNWTO. चलो आगे बढ़ते हैं. Which country has created a new Guinness of World Record by simultaneously waving 78,220 national flags? So the correct answer is India. ये मैंने एक क्वेश्चन में करवाया था, बिहार में हुआ है ये, ओके, बिहार राज्य में, बिहार स्टेट में दिस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज़ बीन डन. ओके, डू रिमेंबर दिस. विच कंट्रीज गुदलजारा सिटी was named World Book Capital for the year 2022 by UNESCO? The correct answer will be Mexico. Who has been reappointed the Prime Minister of Cote d'Ivoire, Ivory Coast? Okay, the correct answer is इसका हो जाता है A, Patrick Achi. Which country has become the first to give the legal rights to individual wild animals? So the correct answer is Ecuador. Okay, this is an important question. Next is Abrabu Mansour Hadi has resigned as the president of which country? So इसका जो correct answer हो जाता है वो है यमीन. Okay. 38. Who has been elected as the 23rd Prime Minister of Pakistan after no confidence motion? Okay, 23rd Prime Minister. पहले जो इमरान खान थे तो नाउ वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रहे नहीं. ओके, तो ना जो अभी नया प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है शहबाज शरीफ. ओके, शहबाज शरीफ. ओके, तो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था. व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन? नो कॉन्फिडेंस मोशन इज बेसिकली ए वोट, ओके, वेदर ए पर्सन इन ए पोजिशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल फिट टू होल्ड दैट पर्टिकुलर पोजिशन और नॉट. ओके, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है. आपने शायद अपने बेसिक पॉलिटिकल क्लासेस में किया ही होगा. अगर नहीं किया है तो मेरे को बता दीजिएगा इंस्टाग्राम पे मैसेज DM करके. आई विल श्योरली टेक अप दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन. थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में. ओके, मोटा मोटी मैंने आपको बता ही दिया है. इट्स अबाउट ए वोट और ए स्टेटमेंट इन विच ए पर्सन इन ए पोजिशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल फेल टू होल्ड दैट पोजिशन और नॉट. ओके, दिस इज नो कॉन्फिडेंस मोशन. सो आगे बढ़ते हैं. What is the estimated GDP growth rate in India in financial year 2023 as per RBI in its first MPC meeting for 2022-23? So इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, 7.2%. Tap to Pay or UPI is a new functionality launched by which digital platform? So Tap to Pay कहाँ लॉन्च हुआ है? मैंने पहले आपको बताया था. This has been launched in buses of कहाँ? महाराष्ट्र, मुंबई. buses of Mumbai. So this has been launched by Google Pay. Okay. So आज का क्लास में यही ख़त्म करता हूँ. So I will see you in the next class. Till then, keep studying and take care. Bye.